Okay, good morning, students. We'll begin with lecture 35 today, and we'll be discussing sorting. So far, we have discussed about hash table and searching. Today, we'll discuss general background of sorting, and we'll discuss two sorting techniques: bubble sort and insertion sort. We'll begin with the general background of sorting. Sorting refers to arranging data in a particular format. Sorting algorithm specifies the way to arrange data in a particular order. Now, this particular order are two types. It may be numerical or it may be lexicographical. Numerical means if you have the numbers, so they may be of the order 1, 2, 3. And lexicographical means if you have the word apple and if you have the word air. So in dictionary, this I comes before P. So it will be sorted like air and then apple. So this is called as lexicographical. Okay. The importance of sorting lies in the fact that data searching can be optimized to a very high level if the data is sorted in a if the data is stored in a sorted manner. अगर आप sort करके data रखते हो ना तो searching बहुत easy हो जाता है, कम समय में data search हो जाता है. So sorting plays a very important role. And sorting is also used to represent data in more readable formats. In real life, for example, dictionary. Dictionary आपको पता है कि सब character जो होते हैं वो sorted order में सब string जो होते हैं या word जो होते हैं वो sorted order में रहते हैं डिक्शनरी में. So इसीलिए आपको ढूंढना भी बहुत आसान हो जाता है. डिक्शनरी बहुत बड़ी होती है, हजारों पेजेस होते हैं, फिर भी हम लोग तुरंत कोई वर्ड उसमें ढूंढ लेते हैं. इसका मेन रीजन है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में. अज्यूम करो ये हजारों पेजेस में अगर वर्ड्स अनसॉर्टेड होते तो बहुत मुश्किल हो जाता हमें वो वर्ड ढूंढना. सिर्फ इमेजिन करके देखो कि कितना समय लगता है. So what is that ascending order and what is that descending order we discussed? A sequence of values is said to be in ascending order if the successive element is greater than the previous one. तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. अगर एग्जांपल में देखो 1, 3, 4, 6, 8, 9, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये 8, इट इज ग्रेटर देन 6 द प्रीवियस एलिमेंट. अगर ऐसा ऑर्डर हो देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसका उल्टा दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. A sequence of values is said to be in descending order if the successive element is less than the current one. तो ये करंट एलिमेंट है सपोज और उसका सक्सेसिव ये 3 है, तो ये 3 ये 4 से छोटा है, और समझो नेक्स्ट एलिमेंट ये 1 है, ये 3 से छोटा है, तो ये जो ऑर्डर होगी इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके. Sorting techniques can be divided into two categories. These are internal sorting and external sorting. In internal sorting, if all the data that has to be stored can be adjusted at a time in the main memory, the internal sorting method is being performed. So I'll just tell you this with the help of a diagram. सर माइक ऑफ झाला तुमचा. If I had done that mic off on purpose. So this is your memory and this is RAM. And suppose this is your external storage. So you have the data over here which you want to sort. If you load that data in the RAM, so it will look like this. This is your data. अगर हमारा सारा डेटा यहाँ पर आ जाता है रैम में और हम लोग उसको यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं, this kind of sorting is called internal sorting. If all the data that has to be sorted can be adjusted at a time in the main memory. At a time मतलब सारा डेटा एक ही समय में main memory में अगर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, the internal sorting method is being performed. तो अगर ये पूरा डेटा एक साथ में आ सकता है यहाँ पे, तो हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल सॉर्टिंग हो रही है या हो सकती है. दूसरा है एक्सटर्नल सॉर्टिंग, कि आपके पास में इतना सारा डेटा है, इतना बड़ा डेटा है कि वो एक साथ में आपके मेमोरी में नहीं एडजस्ट हो पाएगा, ये मेमोरी कम पड़ेगी उसके लिए. तो आप क्या करते हो, उसका एक पार्ट मेमोरी में लाते हो, सिर्फ इतना वाला पार्ट लाएंगे मेमोरी में, उसको सॉर्ट करेंगे, फिर ये दूसरा वाला पार्ट लाएंगे, उसको सॉर्ट करेंगे,
टुकड़ों में सॉर्ट करेंगे सपोज. So when the data that is stored, sorry, that has to be sorted, cannot be accommodated into the memory at the same time. एक साथ में आप पूरा डेटा मेमोरी में नहीं ला सकते. बचा हुआ डेटा कुछ ऑक्सिलरी मेमोरी में आपको स्टोर करना पड़ेगा. ये ऑक्सिलरी मेमोरी है. और फिर ये जो होते हैं ना, ये प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं हम लोग. Such as hard disk, floppy disk, magnetic disk, the external sorting methods are performed. जो sorting methods पार्शियल डेटा मेमोरी में लाता है, बाकी का डेटा डिस्क पे रखता है और डाटा को सॉर्ट करता है, ऐसे मेथड्स को बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग मेथड्स. तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग मेथड्स के नाम फॉर एग्जांपल है एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट, इट इज सिमिलर टू क्विक सॉर्ट, और एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट, इट इज सिमिलर टू मर्ज सॉर्ट. ओके, so hope you have understood what is internal sorting and what is external sorting. Yes. Somebody tell me internal sorting कब होता है और external sorting कब होता है? Yes, anyone of you? अनिकेत पारी, मीनल. येस सर. इंटरनल सॉर्टिंग म्हणजे आपल्याकडे डेटा कमी असला आणि तो आपण ऍट अ टाइम मेन मेमरी मध्ये कधी टाकू शकलो ते इंटरनल सॉर्टिंग. आणि एक्सटर्नल सॉर्टिंग मध्ये डेटा जास्त असला तो आपल्याला ब्लॉक म्हणजे एका वेळेला थोडा पोर्शन टाकायचा, मग तो सॉर्ट करायचा, नंतर दुसरा पोर्शन टाकायचा, तर एक्सटर्नल सॉर्टिंग. Right, absolutely right. Okay, and then we have different techniques for that. So in our course we are just going to see internal sorting methods. Okay, even the merge sort that we are seeing is also internal sorting only. Okay, we are not seeing anything about external distribution sort or external merge sort. We are not discussing external sorting methods in this course. Now, next type of sorting is in-place sorting and not in-place sorting. So, in-place sorting algorithms do not require any extra space. So, sorting algorithms may require some extra space for comparison and temporary storage of few data items. So, in-place sorting do not require any extra space and sorting is said to happen in place. अगर ये डेटा है हमारा इनपुट, ये एरे है और इसमें कोई डेटा है, अगर यहीं पे वो सॉर्टिंग हो जाती है, कोई नया एरे या फिर ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, यही क्या है, यही उसी एरे में अगर सॉर्टिंग हो जाती है, then it is called as in-place sorting. And not in-place sorting में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट है, उसको ये इनपुट एरे दिया है, तो मर्ज सॉर्ट को हम लोग देखेंगे आगे, और एक उसी साइज का एरे लगता है और इसमें वो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है. तो मर्ज सॉर्ट में एडिशनल एरे लगता है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ओके, सो आई होप यू हैव फाउंड you have understood the difference between in place and not in place. In place में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता है और नॉट इन प्लेस में एक्स्ट्रा स्पेस लगता है. सॉर्टिंग अकेले इसी में नहीं होता है, उसको बाकी का जो सॉर्टिंग होता है वो इस एरे में भी होता है. ठीक है, बाकी पार्ट ऑफ द सॉर्टिंग हैपेंस इन दिस, और ये कुछ होने के बाद फिर से इसमें डेटा कॉपी कर देता है. फाइनल में हम लोगों को यहाँ रिजल्ट दिखता है. तो ये टेम्पररी कैलकुलेशन करने के लिए मर्ज सॉर्ट अलग एरे का यूज करता है, तो सॉर्टिंग उसी एरे में नहीं हो रही है. इट रिक्वायर्स एडिशनल एरे फॉर दैट, and hence it is called not in place sorting. Do you have any query over here? Can anybody tell me the difference between in place sorting and not in place sorting? Chetna, can you tell? Yes sir. In place sorting मध्ये आपण
ॲरे मध्येच सॉर्टिंग करणार आहे आणि नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग मध्ये आपण टेम्पररी एक मेमरी स्पेस घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण सॉर्टिंग करून आणि पुन्हा ते आपण मेन मेमरी मध्ये टाकणार आहे. मेन मेमरी म्हटल्यापेक्षा मेन ॲरे मध्ये म्हणून. ॲरे मध्ये. ओके, ठीक आहे. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड इन प्लेस सॉर्टिंग and not in place sorting. Now the complexity and efficiency of sorting techniques. The complexity of sorting algorithm calculates the running time of a function in which n number of items are to be sorted. So we have studied complexity. So running time of a function n number to be sorted. To get the amount of time required to sort an array of element n by a particular method, the normal approach is to analyze the method to find the number of comparisons. So here what you are finding, number of comparisons or exchanges required by it. तो अगर कोई मेथड दी गई है, बबल सॉर्ट है या इंसर्शन सॉर्ट है, जो भी हो, तो हम लोग नंबर ऑफ कंपैरिजंस और एक्सचेंजेस कितने लगेंगे उसके ऊपर उसका कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी करते हैं. उसमें बेस केस आता है, वर्स्ट केस आता है, एवरेज केस आता है. वर्स्ट केस आपको मालूम है बिगो. बेस केस क्या है? ओमेगा. और एवरेज केस क्या है? थीटा. एवरेज केस को आप ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो, ये लाइन बीच में से जा रही है ना, ये एवरेज है ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का. आपको याद होगा ये लाइन जो है ऐसा, तो ये बीच में से लाइन जा रही है, तो यू कैन अज्यूम दिस इज द लाइन, और ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट. ओके, और बेस्ट में लेना है ना, तो ये देखो ये बेस्ट ऊपर वाला ऐसा, यू कैन अज्यूम व्हाटएवर यू वांट. ओके, तो ये ओमेगा, सो बेस्ट इज ओमेगा, वर्स्ट इज ओ. वर्स्ट तो वो ध्यान में रह जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ वर्स्ट चीज अगर सुनी तो हम लोग बोलते हैं ओ, so it is O. Okay, some of them pronounce it as big O also. Average case is theta. So most of the sort methods have time requirement that range from कम से कम ये order of n log n और ज्यादा से ज्यादा order of n square. कौन सी sorting method हम लोग select करें depends on different factors for different problems. So length of time spent by the programmer in programming a specific sorting algorithm. प्रोग्रामर कितना समय लेगा कोड लिखने में, अमाउंट ऑफ मशीन टाइम नेसेसरी फॉर रनिंग द प्रोग्राम, एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी. तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ये एक टेबल दिया है यहाँ पर आपको रेडी रेफरेंस के लिए. जो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, तो सबके बेस्ट टाइम, एवरेज टाइम, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है. आप यहाँ देखोगे कि इन तीनों में बेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ टेम्पररी वेरिएबल की है. स्वैपिंग के लिए टेम्पररी वेरिएबल लगता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 है. मगर मर्ज सॉर्ट देखो, जो आपका एरे का साइज है उतना ही है. क्विक सॉर्ट लॉग एन है, हीप सॉर्ट में भी एरे का साइज है, और ये रेडिक्स सॉर्ट. सो दीज आर योर complexities, time complexity in the first 3 columns and space complexity in the other part. So these are the 7 techniques that we are going to study. Let us begin with the first sorting technique, the bubble sort technique. Go through this slide once again, the complexity of sorting algorithms. सर माइक ऑफ आहे तुमचा. Yes, I have done it. I told you to go through the complexity of the sorting algorithms for a while. Just have a look at it, and that is why I mute my mic. Okay.
Okay, so I hope everybody has gone through this slide. Now we'll begin with the first sorting technique, that is bubble sort. So why the name bubble sort? Okay, we'll discuss this. You know, if you drop something in the water, पानी में कुछ अगर आप गिरा देते हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक गिराते हो, ब्रिक मालूम है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, हिंदी में ईंट बोलते हैं उसको, हम फला की ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट बोलते हैं ना, ईंट। यस सर, दिस इज अ ब्रिक। अगर आपने कोई ब्रिक को पानी में हल्के से छोड़ दिया तो आप देखोगे ऐसे बबल्स ऊपर आते हैं, ठीक है ना, होता है ना ऐसे? यस सर। ऐसा होता है कि ये ब्रिक जो है पानी के ऊपर तैरती है वगैरह, ऐसा होता है? नहीं। नहीं, सिंस ये ब्रिक हेवी होती है वो सिंक हो जाती है। सिंक मतलब डूबना, ब्रिक डूब जाती है और बबल जो होते हैं, एयर के बबल हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। अगर कुछ नंबर आपको दिए तो क्या होता है बबल सॉर्ट में, आफ्टर फर्स्ट पास बबल सॉर्ट का आउटपुट कुछ यू होता है। ये हेवी एलिमेंट जो है ना, पास वन के बाद में ये नीचे चला जाता है और हल्के वाले एलिमेंट्स जैसे बबल ऊपर आए वैसे ऊपर आ जाता है, और ये 44 जैसे ब्रिक नीचे चली गई वैसे ये नीचे आ जाता है। Hence this sorting method is called as bubble sort. दूसरा कोई अलग से कुछ मतलब नहीं है, इसका नाम देना था तो उसका जो प्रिंसिपल है, हल्के एलिमेंट ऊपर आ जाते हैं, हेवी एलिमेंट नीचे चले जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बबल सॉर्ट। तो इसको बबल सॉर्ट क्यों बोलते हैं, पता चल गया आपको? यस सर। ओके, जो सॉर्टिंग मेथड हम लोग देखने वाले हैं उसका बेस्ट टाइम है n स्क्वायर, उसका एवरेज टाइम है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो बेस्ट n स्क्वायर है, एवरेज n स्क्वायर है, वर्स्ट भी n स्क्वायर है। पर मैंने जो आपको पहले वाली स्लाइड दिखाई है उसमें बताया था कि बेस्ट कैन बी ऑर्डर ऑफ n। देखते हैं वो स्लाइड फिर से, ये देखो, अगर एरे पहले से सॉर्टेड हो, अगर एरे पहले से सॉर्टेड हो और आप बबल सॉर्ट कर रहे हो तो एक वर्जन है बबल सॉर्ट का जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट। तो तब वो ऑर्डर ऑफ n देगा, बेस्ट केस मतलब ऑर्डर ऑफ n मतलब ये ओमेगा ऑफ n, सॉरी ओमेगा ऑफ n देगा ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट के लिए। बेस्ट केस विल बी ओमेगा ऑफ n। ओके, ये आपको मुझे बताना है कि ऑप्टिमाइज कैसा करें, जो आप कोड अभी देखेंगे तो उसको ऑप्टिमाइज कैसा करना है। ओके, तो हम लोग बिना एल्गोरिथम के हेल्प के वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करते हैं। we'll assume some numbers, तो आप बताते जाओ, we'll assume some numbers, tell me some numbers and we'll sort it।
अक्षय पडघर आहे का रे? अक्षय, अरे दिसलं का तुझं नाव? अक्षय पडघर हा अभी नहीं है. पल्लवी खाकरे. Pallavi, tell me some numbers. Yes, sir. Yes, sir. So 10. how many numbers we have to take? N is equal to कितने नंबर सॉर्ट करना है बोलो? सर कितना नंबर सॉर्ट करना है? N बताओ पहले. 10. 10 नंबर सॉर्ट करना है. ठीक है, चलो अब नंबर्स बताओ. 22. 22 ये पहला नंबर हो गया. 35. 35, 17. 17, 5. 5, 85. 85, 66. 56, 57. 57, 48. 48, 95. 95, 60. 16, 16. Huh. Okay, so these are the 10 numbers. Can you see these numbers, dear students? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, येस सर. okay. Ascending order में sort. Ascending. We want to sort this list in ascending order. Okay. Are you all ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. पहले स्टेप में क्या होगा? म्यूट योर माइक प्लीज. पहले स्टेप में क्या होगा? इसमें सबसे हेवी एलिमेंट कौन सा है बताओ? 95. 95. 95. 95 यहाँ पर आने वाला है, ये हमको मालूम है. ओके, पर सिर्फ ये 95 यहाँ नहीं आता है, बीच में भी कोई डेटा चेंज होता है. तो चलो असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो हम लोग 22 और 35 को कंपेयर करो. छोटा कौन है? 22. 22. तो वो वही रहेगा. और हाँ, N10 है ना, N10 है ना, तो हमें 9 पास लगने वाली है. ये पास 1, फिर पास 2, फिर पास 3, फिर पास 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 पास लगने वाली है हम लोगों को. कितनी? 9. 9. N-1 पासेस लगती है. N10 है, 10-1 9 है. पे केयरफुल अटेंशन टू दिस. ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नंबर दिए हैं तो तीसरे पास में क्या रिजल्ट आएगा. ठीक है, जिसको बबल सॉर्ट पता है वही तीसरे पास के बाद क्या आंसर आएगा, चौथे पास के बाद क्या आंसर आएगा वही लिख पाएगा, बाकी नहीं लिख पाएंगे. और ये नेट पे भी अवेलेबल नहीं होगा, तो कहीं से कॉपी कर लेंगे भाई, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, सो पहले हम लोग ये 22 और 35 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 22 छोटा है वो अपनी जगह पे रहेगा. फिर हम लोग कंपेयर करेंगे 35 और 17 को. स्वैप होंगे. 17. हाँ, 17 17. स्वैप हो जाएगा ना. Yes, sir. 17 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 35 आएगा. ठीक है, फिर 35 और 5 को हम लोग कंपेयर करेंगे. 5. 5. 5. हाँ 35 आ 35 और 85 को कंपेयर करो. 35. 35. आप ये 85 और 6 को कंपेयर करो. 66. 85 था सर. 57. हाँ 85 और 57, तो ये 57. 57. 85 और 48. 48. 85 और 35. 85 और 16. 16. अब लास्ट में क्या? 95. चलो ये अपनी जगह पे आ गया. अगली बार हमें यहाँ नहीं जाना है, ये स्टेप हमें नहीं करनी है अगली बार. यानी अगर हमारा ये I है 1, तो हम लोग माइनस कर देंगे उसमें से एक एलिमेंट, सिर्फ यहाँ तक जाएंगे अभी अगली बार. ठीक है ना?
क्योंकि ये सॉर्ट हो चुका। अब चलो सेकंड स्टेप। 17 ये करेक्ट है? 7 गलत है? 85. यस सर ओके, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट बराबर। अब नंबर 2 22 और 17 कंपेयर करो। 17 17 22 and 5 5 5 5 22 and 35 22 22 22 35 35 35 57 57 58 48 66 66 66 16 16 85 85 तो स्टूडेंट्स नो दैट कि ये 85 अपने जगह पे आ गया, ये 95 अपने जगह पे था। ये दो नंबर शॉर्ट हो गए, राइट? कितना बचा है? अब बोलो। 5 5 17 22 22 35 35 48 57 16 66 ये तीन नंबर शॉर्ट हो गया, ठीक है? नाउ 5 17 22 22 35 48 57 16 नहीं 16 57 ये देखो, ये ऑलरेडी यहाँ से लेकर 48 तक सॉर्टेड है, तो ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। डेटा जो दिया गया था हमको तो वो उस तरीके से है कि अब ये क्या होगा? 5 22 35 16 48 यहाँ का डेटा शॉर्ट है। Five, 17 22 22, 16 35 35. 35 नेक्स्ट 5, 16 16, 22 16, 22. नेक्स्ट 5, 16, 5, 16, 17. लास्ट स्टेप 5 16 5, बड़ा है तो 5 फिर में ये 16 फिर 17 फिर 22 35 57 56 85 95 ये भी अपनी जगह पे आ गया है। ये 5 भी अपनी जगह पे आ गया है। एक ही एलिमेंट बचा है, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है? सो दिस इज द वे इट इज सॉर्टेड, राइट? Yes. अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं तो विल यू बी एबल टू सॉर्ट इट? नंबर्स मतलब लिस्ट दे दूं एक, तो आप सारे स्टेप लिख सकोगे इसके आगे? Yes sir. यस सर हाँ, तो सब सॉर्टिंग Sir, सब hello. सॉर्टिंग लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे, आपसे आगे। है- तो हमें Hello, sir. एल्गोरिथम भी आना चाहिए और हमें ये ड्राई रन भी करके आना चाहिए। जब हमें ये समझता है कि ये वर्क कैसा होता है, तब हमें एल्गोरिथम भी समझ में आ जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ऐसी है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जब हम कंपेयर करते हैं तो ये अगर छोटा है तो एक्सचेंज हो जाता है। ये एलिमेंट बड़ा है और ये एलिमेंट छोटा है तो एक्सचेंज हो जाता है, और अगर ये एलिमेंट छोटा होता है, ये एलिमेंट बड़ा होता है तो एक्सचेंज नहीं होता। स्वैपिंग वाला जो लॉजिक है वो है। दूसरी बात, ये एल्गोरिथम Hello, कितनी sir. बार एग्जीक्यूट होता है? हेलो
हेलो। हेलो। हाँ सर, आई एम निशान। सर हाँ वो निशान, ये कंपलसरी है क्या कि n-1 टाइम्स में ही वो सॉर्टिंग होगा? नहीं उसके पहले भी हो जाएगा। तर मग आपला 8 नंबरच्या व्हेन वी यालाच टेक झालाय वैल्यू ना. टू ऐड। बोलो बोलो। सर जब हम लोग ऑलरेडी हाफ वो सॉर्टिंग रहेगा, अगर वो एलिमेंट हम लोग को मिलता है 10 डिजिट हाँ तक, तो उसमें हम लोग अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, मतलब सॉर्टिंग करेंगे, तो वो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 टाइम्स में ही वो कंप्लीट हो जाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पर एक ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट मेथड है, ठीक है। ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट है ये मेथड। अगर एरे सॉर्ट हो जाता है जल्दी, तो ये जल्दी बाहर निकाल देता है। पर जो हम लोग वर्जन देखने वाले हैं ना, तो वो ये वाला है कि जिसमें ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है सब, ठीक है। आप उसको ऑप्टिमाइज करा सकते हो। मैं चाहे, मैंने आपको बोला था कि आप मुझे इम्प्लीमेंट करके बताओ, बट शायद मैं इसके ऊपर डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि ये कब हो जाएगा ऑप्टिमाइज। ओके, क्योंकि हम लोग वो ओरिजिनल बबल सॉर्ट देख रहे हैं जो पहला बना था। तो उसमें ये जब हम लोग n-1 बोलते हैं ना, तो ये n ही है एक्चुअली, और ये अंदर में भी n बार हो रहा है, तो ये n स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग ये वर्जन देख रहे हैं। मोर स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो मैं कोड दिखाता हूँ आपको। हम लोग कौन सा कोड देख रहे हैं, तो हम लोग ये वर्जन देख रहे हैं बबल सॉर्ट का, ये वाला। बाहर एक फॉर लूप है और अंदर एक फॉर लूप है। हम लोगों ने उसको किया है थोड़ा सा ऑप्टिमाइज, तो पर वो n की लैंग्वेज में है, n-i-1 i। ये क्या होगा कि यहाँ पर अगर किसी एक लूप के लिए, अगर यहाँ फ्लैग चेंज ही नहीं हुआ, या फ्लैग लगा सकते हैं और एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो हम लोग इस फॉर लूप में से बाहर आएंगे और जब इस फॉर लूप में फिर से जाएंगे, यहाँ चेक करेंगे वो फ्लैग सेट है कि नहीं। अगर वो फ्लैग सेट नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो तो एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसमें। तो ऑप्टिमाइज वाला वर्जन आप इम्प्लीमेंट करके ग्रुप में डाल देना, ठीक है। इज दिस क्लियर? So it can happen that कि ऑलरेडी array sorted है, या फिर बीच में कहीं तो भी किसी स्टेप में तीसरे पास में भी सॉर्ट हो गया, तो उसने चौथे पांचवे छठे पास में जाना नहीं चाहिए। उसके लिए आप कोड लिख सकते हो। ओके निशान, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड नाउ। ऐसा अज्यूम करो कि हमारा एरे का साइज है 6, या फिर जो डेटा हमें सॉर्ट करना है वो है n = 6। कितने पास होंगे? 5. 5. 5 passes। So n-1 = 5 पास। तो अगर i को 0 से स्टार्ट किया तो कहां तक? 4 तक. 5. तो ये देखो, हाँ 4. 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। 5 के वक्त क्या होगा? 5 < 5 नहीं होता है ना, नहीं. तो ये फॉर लूप में से बाहर आ जाएगा। तो ये फॉल्स होती है कंडीशन, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रू वाले रिजल्ट्स आएंगे कि 0 < 5 है क्या? i 0 है, ट्रू है। 1 < 5, 2 < 5, 3 < 5, 4 < 5। तो ये आउटर जो फॉर है, ये वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा 0 से लेकर 4 तक। तो ये वैल्यूज क्या होगी? 1 2 3 4 5। सो आउटर फॉर लूप विल टेल यू द नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड। I will supply the number of passes. Is this clear? हम लोग कोड समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोड दिखाता हूं आपको फिर से एक बार। ये बबल सॉर्ट है, यहाँ पर एरे जो आपको सॉर्ट करना है वो आएगा, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई सबस्क्रिप्ट है फॉर लूप का, ये अंदर वाले फॉर लूप का सबस्क्रिप्ट, और एक टेम्परेरी वेरिएबल है स्वैपिंग के लिए यहाँ पर।
ये आउटर फॉर लूप क्या कर रहा है? नंबर ऑफ पासेस. नंबर ऑफ पासेस 0 1 2 3 4. ओके, अब पहली बार 6 अगर एलिमेंट्स है हमारे पास, अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, so these are 3 plus 3, 6 elements we have. तो हमें जो कंपैरिजन करना है, तो 10 और 9 का करना है, मतलब 0 और 1 का करना है, 1 और 2 का करना है, 2 और 3 का करना है, फिर 3 और 4 का करना है, फिर 4 और 5 का करना है. कहां तक करना है आपको? लास्ट कंपैरिजन क्या होगा? 4 और 5. हाँ देखो, ये जो J है, J+1 से कंपेयर कर रहे हैं, J और J+1 लिख रहे हैं. ठीक है, J और J+1 लिख रहे हैं हम लोग. तो J of 4 should be compared with J of 5. ये लिखा है हम लोगों ने, सॉरी ये एरे है 4 और ये 5, ये J+1 है, ये J है. तो कहां तक हमारा J जाना चाहिए? लास्ट की वैल्यू जो है ना J की, हाँ करेक्ट, 4. 4. J ने सिर्फ 4 तक जाना चाहिए. 5 को अगर जाएगा ना J, तो वो 5 और 6 को कंपेयर करना शुरू कर देगा. Got it? तो पहली बार हमारा ये पहली बार जब ये फॉर लूप अंदर जाएगा तो ये I की वैल्यू होगी 0, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. कि पहली बार ये फॉर लूप बाहर का जब I की वैल्यू 0 देगा, तो अंदर क्या जाएगा? n मतलब 6 minus 1 म्हणजे 5, 5 minus 0, करेक्ट? I'll make things clear to you. ये अननेसेसरी जो है थोड़ा मिटा देते हैं लोग इसको. हमें ये पता है कि ये जो बाहर वाला फॉर लूप है, ये हमको वैल्यू सप्लाई करने वाला है. सबसे पहले वो क्या वैल्यू सप्लाई करेगा? बाहर वाला फॉर लूप क्या वैल्यू सप्लाई करेगा? पहले 0. 0. अब ये एक्सप्रेशन, अब J 0 हो जाएगा, पर J कहां तक जाएगा? n minus 1 minus I का वैल्यू क्या है? 0. 0. n minus 1 बोलो. 5. 5. 5. Less than 5. Less than 5 मतलब कहां तक? Less than 5 मतलब कहां तक? 4. 4. 4 तक. 0 to 4. चलो देखते हैं. तो जब ये I 0 देगा, तब ये n minus I मतलब 6 minus I मतलब 5. ठीक है, माइनस I माइनस 0, आंसर 5 आएगा. और लेस देन 5 मतलब J will produce value 0 to 4, करेक्ट? 0 to 4 प्रोड्यूस होगा मतलब 0 और 1 कंपेयर करेंगे हम लोग, 1 और 2 करेंगे, 2 और 3 करेंगे, क्योंकि ये J है और ये J+1 है, और ये 3 और 4 करेंगे चेक, और ये 4 और 5 चेक करेंगे. सब चेक कर लेंगे एलिमेंट्स.
अगली बार क्या होगा, i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी 1 1, फिर ये 5 माइनस 1 होगा, रिजल्ट 4 आएगा, लेस देन 4 मतलब j की वैल्यू 0 to 3 होगी, 0 to 3 होगी मतलब क्या होगा, 3 और 4 तक सर्च होंगे। हाँ ये लास्ट वाला एलिमेंट 4 और 5 हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पांचवा एलिमेंट सॉर्टेड है। अगली बार ये 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, रिजल्ट 3 आएगा, लेस देन 3 मतलब 0 to 2। अब कंपैरिजन 2 3 एलिमेंट्स होगा, दो कंपैरिजन नहीं होंगे क्योंकि सॉर्ट चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट शॉर्ट हो गया है। ओके, चलो देखते हैं हम लोग। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और जे की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4 यहां तक, मतलब ये कंपैरिजन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये 4 वाला भी होगा। ये जे है और ये जे प्लस 1 है, यहाँ पर ये जे था, जे प्लस 1 1 था। तो फर्स्ट पास में सारे एलिमेंट्स हम लोग कंपेयर करेंगे। तो चलो इसका आंसर बताओ। 7 7 7 7 8 8 8 3 6 6 6 1 12 1 1 12 12 राइट। अब हमको ये नहीं चाहिए, राइट, वैल्यूज यहां तक ही जनरेट होनी चाहिए, 0 1 2 3 तक ही होनी चाहिए अगली बार, राइट। देखो यहाँ पर 0 to 3, क्योंकि 3 to 4 कंपेयर हो जाएगा, तो हम लोगों ने जो माइनस आई किया है ना, तो ये आंकड़ा कम करता है माइनस आई। चलो कंपेयर करते हैं। 7 7 7 3 3 6 6 8 8 1 1 12 0। ठीक है, अब ये स्टेप 3 6 3 6 1 1 7 7 8 12 अभी अगले इसमें क्या होना चाहिए, उसने ये वैल्यूज 0 और 1 ही जनरेट करनी चाहिए, 0 और 1, क्योंकि ये कंपेयर हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन और ये दूसरा कंपैरिजन। क्या बोलो, आंसर क्या आएंगे? 3 3 1 1 1 6 1 12 7 8 7 12 12 अब उसमें सिर्फ एक वैल्यू जनरेट करनी चाहिए, सिर्फ ये 0, ये होने वाली है। तो ये कंपैरिजन होगा 1 1 3 6 7 8 2 7 8 2 हो गया, हमारा एरे सॉर्ट हो गया। ठीक है, सो हम लोग जब ये कोड देखेंगे तो नंबर्स ऑफ आई वाज कंपेयर्ड विद नंबर्स ऑफ j plus 1, करंट नंबर वाज चेक विद द नेक्स्ट नंबर। अगर करंट नंबर बड़ा है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से, तो हम लोगों ने ये स्वैपिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट किया। स्वैपिंग का लॉजिक अलग से बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये देखो, j का वैल्यू 0 से 4, यानी ये 0, ये देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो क्या होगा यहाँ पर, 0 और 1 कंपेयर होगा, तो ये बड़ा है 0 से, ये 1 है, तो नंबर ऑफ 0 इज ग्रेटर देन j plus 1 है। तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो 7 8 फिर से, यानी ये 0 1 वाला हो गया, फिर ये 1 2 वाला होगा, मतलब ये 1 और 2 कंपेयर होगा, राइट। ये 8 है और ये 12 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कंपैरिजन नहीं होगा, मतलब सॉरी स्वैप नहीं होगा, तो 12 अपनी जगह रहेगा। फिर 12 और 3 कंपेयर होगा, तो ये 12 जो है मतलब 2 और 3 होगा, 2 और 3, तो ये 12 और ये 3 है, तो ये 12 बड़ा है 3 से, तो स्वैप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 12। फिर 3 और 4 कंपेयर होगा, 3 और 4, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, स्वैप हो जाएगा, 6 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा। फिर 4 और 5 कंपेयर होगा, ये 4th एलिमेंट और 5th एलिमेंट, तो 1 छोटा है, 1 यहाँ आएगा और 12 यहाँ आएगा, स्वैप हो जाएगा। So at the end you will get 12 over here, तो देखो ये 12 आ गया,
अगली बार ये 5 ही आना चाहिए, तो इसलिए j इज इक्वल टू 0 to 3 होगा। तो 0 1 ये कंपैरिजन होगा, 1 2 ये कंपैरिजन होगा, 2 3 ये कंपैरिजन होगा, और 3 4 ये कंपैरिजन होगा। ये लास्ट वाला कंपैरिजन नहीं होगा। और मैं आपको पता है 7 8 वैसे के वैसे रहेंगे। अब ये 8 कंपेयर होगा 3 से, तो 3 छोटा है, 8 बड़ा है। अब ये 8 कंपेयर होगा 6 से, 6 छोटा है, 8 बड़ा है। अब ये 8 कंपेयर होगा 1 से, तो 1 छोटा है, 8 बड़ा है। So you got this result as 7 3 6 1 8। ये अपनी जगह आ गया है 8, तो 7 3 6 1 बचा है। अब कंपैरिजन 7 3 में, 3 6 में और 6 1 में, ये तीन कंपैरिजन होनी चाहिए। तो कर देते हैं, ये आएगा 3, ये आएगा 7 7 और 6, तो ये 6, ये 7 7 और 1, तो ये 1 और ये 7। तो अब बचता क्या है 3 6 1। हम लोगों ने करके देखा है, फिर हम लोग लिख रहे हैं 6, फिर ये 1 और ये 6, ये अपनी जगह आ गया। बचता है 1 3 और 1, ये एक ही स्टेप करनी है, 1 यहाँ आएगा, 3 आएगा। So you know this is sorted now. So this is the bubble sort algorithm that we have just discussed. Do you have any queries? Do you have any queries? Please answer. ये बाहर वाला फॉर लूप क्या करता है, अंदर वाला फॉर लूप क्या करता है, और ये मैकेनिज्म इफ वाला क्या करता है, क्या ये समझ में आ गया आपके? अगर है तो हाँ बोलो, यस बोलो। नहीं समझ में आएगा तो नहीं बोलो। यस सर। समझ गए। ओके, अगर इसको ऑप्टिमाइज करना है आपको, तो यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल ले लो, इंटीजर फ्लैग इक्वल टू 0। यहाँ सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करो और इसको इनिशियलाइज यहाँ करो। ठीक है, फ्लैग इक्वल टू 1 यहाँ करो, मतलब एक्सचेंज हो गया। समझो आप लोगों ने एक सॉर्टेड लिस्ट दी थी, ये सॉर्टेड लिस्ट है, i इज इक्वल टू 0 पहली बार, फ्लैग 0 रहा, ये अंदर वाले फॉर लूप में गया और कोई नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ। पहले ही पास में 1 2 ये छोटा है, ठीक है, 2 3 छोटा है, प्रॉब्लम है, 3 4 3 छोटा है, 4 5 4 छोटा है, 5 6 5 छोटा है, 6 7 6 छोटा है। तो क्या एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। फ्लैग का वैल्यू चाहिए। तो फ्लैग 1 होगा क्या? नहीं। तो फ्लैग 1 होगा ही नहीं, 0 के 0 रहेगा। जी 0 रहेगा। उसके बाद में आप चेक करो, इफ फ्लैग इक्वल्स 0 ब्रेक, ये आउटर फॉर लूप में से ब्रेक हो जाएगा। होप यू गॉट दिस। यस सर। समझ में नहीं आया होगा तो पूछो फिर से, आई विल एक्सप्लेन। एक टाइम सांगा। See, I'll tell you once again. Suppose हमारा डेटा पहले से सॉर्टेड है। Suppose हमारा डेटा पहले से सर एखादा एलिमेंट जर अनसॉर्टेड असला, फक्त एकच एलिमेंट, सो देन हाँ, लेट मी टेल यू, वो उसकी पोजीशन कहाँ पर है उसमें भी डिपेंडेंट है। कि सपोज ऐसा होगा, तो ये कौन से पास में सॉर्ट हो जाएगा? 1 पास। फर्स्ट तो Yes. फर्स्ट पास में सॉर्ट हो जाएगा, पर सेकंड पास में जब जाएगा तो ऐसा ही डेटा जाएगा ना। यस हाँ, सॉर्टेड। यस हाँ, तो मेरा कहना ये है
मेरा कहना ये है कि ऑलरेडी अगर वो हाँ प्री सॉर्टेड होगा तो पहले स्टेप में जाएगा और पहले स्टेप में उसको पता चलेगा कि ये डाटा सॉर्टेड है। और अगर ये केस होगा तो पहले स्टेप में सॉर्ट कर लेगा और दूसरे स्टेप में पता चलेगा कि भाई ये तो सॉर्टेड है। डिपेंड्स ऑन, कोई डाटा तीसरे सॉर्ट में पता चलेगा, कोई चौथे में पता चलेगा। ठीक है ना? तो यस सर। उसके लिए हर फॉर लूप में हर आई के वैल्यू को पहले फ्लैग 0 करते हैं और जब ये फॉर लूप अंदर घूमेगा ये ऐसा, ठीक है, तो तब देखना है हम लोगों को कि स्वैपिंग हुई है कि नहीं। अगर स्वैपिंग हुई है तो फिर से सॉर्टिंग करो। फ्लैग हाँ, अगर स्वैपिंग नहीं हुई है तो फ्लैग को चेक करो। अगर वो 0 के 0 रह गया है तो ब्रेक कर दो। तो ये ऑप्टिमाइज हो गया। तो उसका बेस केस जो है ऑर्डर ऑफ एन आएगा। ठीक है? इज दिस क्लियर? यस यस सर। ओके। ये ऑर्डर ऑफ एन कब है कि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड दिया होगा पूरा का पूरा ऑर्डर ऑफ एन, यानी सिर्फ एन कंपैरिजन करेगा अंदर ये एन। ठीक है? ओके। थर्ड विल डिस्कस इज इंसर्शन सॉर्ट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। बेस्ट केस जो है ना इंसर्शन सॉर्ट की वो है ऑर्डर ऑफ एन। एवरेज केस है एन स्क्वायर और वर्स्ट केस है एन स्क्वायर। तो फिर से वही गलती होगी, एवरेज केस थीटा बराबर है, बेस्ट केस क्या होना चाहिए? ओमेगा, राइट? ये एल्गोरिथम आसान है मगर इसका कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि नहीं? यस सर। जैसे हम लोगों ने बबल सॉर्ट को पहले ड्राई रन करके सॉल्व किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग ड्राई रन करके डेटा सॉर्ट करते हैं। समझो ये हमारा डेटा कितने नंबर है यहाँ पर? 5 5 नंबर। 5 हम लोगों ने थोड़ा छोटा नंबर लिया क्योंकि अगर ज्यादा लेते हैं ना तो फिर टाइम भी ज्यादा लगता है। चलो, एन अगर 5 है तो पासेस कितनी लगेगी? 4 4 4। तो 5 0 1 से स्टार्ट करते हैं। पास 1, पास 2, पास 3, पास 4। ठीक है? एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर। ठीक है, अब इंसर्शन सॉर्ट की साइकोलॉजी जानते हैं। ये इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है? इनिशियली वो ऐसा अज्यूम करता है कि ये जो लिस्ट है ना उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और वो क्या करता है, एक एलिमेंट ऐड करता है। फिर 2 नंबर की लिस्ट बनेगी, फिर और एक एलिमेंट ऐड करता है, फिर 3 नंबर की लिस्ट बनेगी और एक एलिमेंट ऐड करता है, 4 नंबर की लिस्ट बनेगी और एक एलिमेंट ऐड करता है, 5 नंबर की लिस्ट बनेगी। सो इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है? 1 बाय 1 एलिमेंट्स ऐड करता है लिस्ट में। शुरुआत में कौन सा एलिमेंट है लिस्ट में? फिर 14। सिर्फ 14 और एक ही एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है, राइट? यस यस तो एक एलिमेंट सॉर्टेड है ऐसा अज्यूम किया है। अब नया एलिमेंट हमको डालना है 12। अब ये पहली वाली जो लिस्ट है उसमें सिर्फ 14 है और वो सॉर्टेड है। अब नया एलिमेंट ऐड हो रहा है 12। ये 14 उस लिस्ट में का लास्ट नंबर है, राइट?
यस सर यस यस तो नया आने वाला एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करो। लेस है। अगर वो एलिमेंट छोटा हुआ तो लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट कहाँ होगा? 12 तो इस तरीके से इंसर्ट हो गया 14 के पहले, और बचे हुए एलिमेंट्स है 6, 19 और 10। इज दिस क्लियर? ये होगी एक स्टेप, पहला पास हो गया। यस सर यस सर हाँ, अगले पास में क्या होगा? हम किसको ऐड करेंगे अभी हमारे लिस्ट में? 6 6 इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 6 को ये लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करो। लेस 6 लेस है लेस तो वो इस लिस्ट में Yes. ऐड होने वाला कहीं पर। आपको मालूम है कहाँ पर हो रहा है? क्या होगा? 6 6 12 12 14 14 बची अभी लिस्ट हमारी 19 और 10। 19 10 वेरी गुड। अब क्या होगा? कौन ऐड होगा लिस्ट में? 19 19 तो 19 बड़ा है 14 से। यस सर 19 बड़ा है। इस लिस्ट में इंसर्ट होगा बीच में कहीं तो भी ऐसा नहीं नो ऐड हो जाएगा उसमें। 6 12 14 ये 14 के बाद ऐड हो जाएगा, यानी वो अपने ही प्लेस पे रहेगा। विल रिमेन ऑन इट्स प्लेस। विल रिमेन इन इट्स प्लेस। अब किसको ऐड करना है? 10 10 19 से कैसा है वो? छोटा है। छोटा 10 छोटा। है। हम लोग 10 और 19 को कंपेयर करेंगे। चलो ये जगह नहीं है। फिर 10 और 14 को ये जगह नहीं है। 10 और 12 को ये जगह नहीं है। 10 और 6 को, हाँ ये 6 के बाद में है। सो 6 10 12 10 14 12 14 19 ये हमारे 5 एलिमेंट हो गए। 0 1 2 3 4 सॉर्टेड है लिस्ट। करेक्ट? यस सर ओके, हम क्या करेंगे? एल्गोरिथम समझने आना चाहिए, इसलिए इसमें का पास 3 और पास 4 देखेंगे हम लोग। इसके ये दोनों की लिए वर्किंग देखेंगे। अगर इनका वर्किंग हमारे ध्यान में आ गया तो हमको एल्गोरिथम समझ में आ गया। और एक एग्जांपल फिर से देखते हैं। रैंडम नंबर बोलो कुछ तो भी। कौन सा आंसर? जान्हवी कुलकर्णी सांग बरं. येस सर सांग नंबर सांग. एन सांग पहिले. नंबर ऑफ एलिमेंट किती घ्यायचे? 8 सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किती घ्यायचे? एन कितना घ्यायचा? 8. थोड़ा छोटा नंबर बोलो, 6 या 7 बोलो, क्योंकि है ना टाइम लगेगा नहीं तो। ओके 5 ले लो सर 5 लेते हैं, ठीक है। बढ़ा लो इसको, 7 ले लेते हैं, ठीक है। 7 7 चलो एलिमेंट्स बोलो। 10 15 7 66 77 90 2 ओके, और एक बाकी है क्या? नहीं, हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हो गए। तो ये 10 सॉर्टेड है ऑलरेडी। तो 15 को ऐड करेंगे उसमें, तो क्या हो गया? 10 15 ये लिस्ट हो गई सॉर्ट। आगे बचेंगे ये सारे एलिमेंट्स। तो ये होगा पहला स्टेप। 6 स्टेप होने वाले हैं हमारे। अब क्या होगा वो तो अगले स्टेप में? 7 10 15 10 15 डेटा
15, 66. 66. अगले स्टेप में 12, 15, 66, 77. 90. अगले स्टेप में 15, 66, 77, 90. नेक्स्ट स्टेप में 2, 7, 17. 15, 66, 77, 90. तो क्या आपको अगर कुछ नंबर दिए तो ये सारे पासेस आपको मैन्युअली निकालते आएंगे इसके आगे? यस सर. हाँ, तो अगर आपको एक्सटर्नल एग्जाम में पूछा गया कि यू आर गिवन द फॉलोइंग नंबर्स, व्हाट विल द एरे कंटेन आफ्टर स्टेप 3, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो क्या आपको वो आंसर निकाल सकते हैं अभी आप? Yes, sir. यस सर. यस सर. इसका मतलब आपको इंसर्शन सॉर्ट कैसे फंक्शन करता है ये पता चल गया है. ओके, इंसर्शन सॉर्ट का इंटरनल लॉजिक आपको पता चल गया है कि कैसे काम करता है. वो इंसर्ट करता है एलिमेंट. जैसे ये देखो ये 7 है, तो ये 7 अपनी जगह पे इंसर्ट हो गया बराबर. देखो ये अपनी जगह पे आ गया, इंसर्ट हो गया, और इनको एक एक स्टेप से धकेल दिया उसने इस तरह. राइट, इंसर्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट है. चलो अब हम लोग हमारे एग्जांपल पर फिर से आते हैं. हम लोग पास 3 के लिए पास 2 का डेटा यूज करते हैं. राइट, यस सर. तो पास 3 हम लोगों को देखना है. तो पास 2 का डेटा लिख लेते हैं. 6, 12, 14. ये डेटा हमारा सॉर्ट हो गया है. 19, 12, 19, 10. So this is 0, 1, 2, 3, 4. अब हमारा पास है सपोज 3. आई का वैल्यू, ये जो आई है ये 1 से लेकर पास 4 तक डेटा जनरेट. मतलब एन हमारा क्या है 5, तो 4 तक का डेटा वो प्रोड्यूस करेगा 1 to 4. हम लोग ये तीसरी वाली स्टेप देख रहे हैं. i इज इक्वल टू 3. क्लियर, ये तीसरा पास देख रहे हैं हम लोग. ये आउटपुट ऑफ सेकंड पास है. सेकंड पास में ऐसा आउटपुट आया. अब हम थर्ड पास में कैसा वर्क करता है एल्गोरिथम वो पढ़ रहे हैं. किसी भी एक पास में समझ में आएगा तो सारे पासेस में समझ में आ जाएगा. पर हम लोग 2 पास देखेंगे, 3 भी देखेंगे और 4 भी देखेंगे. आई का वैल्यू 3 है. इंडेक्स वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी बताओ? आपको बताना है. Uh, 19. राइट, 19. क्यों 19 आई बताओ? नंबर नंबर ऑफ ऑफ आई म्हणजे आई 3. में 19 स्टोर है. राइट, आई की वैल्यू 3 है और नंबर्स ऑफ 3 को 19 स्टोर है. ये यहाँ पर 19. हमको अभी क्या करना है ना, ये इंडेक्स को इससे कंपेयर करना है, फिर इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है. इसलिए एक वेरिएबल में हम लोगों ने वैल्यू डाल दी है. जे का वैल्यू बताओ? 3. 3. जे का वैल्यू 3. और हमेशा जे है ना एक एक से कम होने वाला है. तो इनिशियली जे का वैल्यू 3 है, बाद में क्या होगा वो 2. 2. 1 वो 2. होगा, वो 0 होगा. तो जे जब 0 होगा, 0 ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं, तो बाहर आ जाएगा. और तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा वो, 3, 2 और 1. ओके,
राइट। यस सर। तो ये वही लूप यस में सर। जे का वैल्यूज क्या प्रोड्यूस होगा वो हम लोगों ने लिख लिया। अब जे का वैल्यू जब 3 रहेगा तब ये एंड ये देखो ये क्या कंपैरिजन हो रहा है। जे -1 जे 3 है, 3 - 1 मतलब दो 2 2। नंबर ऑफ 2 क्या है? 40 14 ग्रेटर देन 19 है क्या? राइट? नो। नहीं। नहीं, इसीलिए ये व्हाइल लूप में से अभी बाहर आ जाएगा। और नंबर ऑफ 3 में इंडेक्स स्टोर करेगा। ये इंडेक्स 19 है और नंबर ऑफ 3 19 है, तो ये नंबर उसी जगह पे करेक्ट है बोलेगा। राइट? मैंने आपको बताया था ये नंबर इससे चेक होता है, अगर इससे बड़ा है तो वो जगह उसी की जगह रहती है। तो ये लिस्ट बनेगी 6 12 14 19, खत्म, बचता है 10। राइट? 19 अपनी जगह पे आ गया। अगली स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा? ये हो गया, यहाँ से फॉर लूप में फिर से जाएगा। आई आई की साइज आई बढ़ेगी, प्लस प्लस राइट? 4 आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई 4 होगा, तो आई का वैल्यू हो गया 4 और ये वैल्यूज बोलो 6 12 14 19 और बचा क्या है? 10 10 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। जे बताओ क्या होगा और इंडेक्स बताओ क्या होगा? 4 4 J4 J4 इंडेक्स 10 इंडेक्स 10 इंडेक्स 10 अभी इंडेक्स यहाँ पर लिखा जाएगा क्या? अपने 10 के ऊपर 10 लिखा जाएगा क्या यहाँ पर? जैसे पिछले बार 19 के ऊपर 10 लिखा गया? नहीं, क्योंकि ये 19 बड़ा है, ये 10 छोटा है, इसका मतलब ये लिस्ट में फिर से ऐड होने वाला है। राइट? अब जे का वैल्यूज क्या क्या प्रोड्यूस होगा बोलो? जे इज इक्वल टू सबसे पहले 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 जीरो नहीं होगा, राइट? क्योंकि जब जीरो होगा तो वो बाहर आ जाएगा। राइट? यस सर। अब हर बार ये नंबर्स ऑफ जे -1 मतलब नंबर्स ऑफ 3 कंपेयर होगा इंडेक्स से, अगली बार नंबर्स ऑफ 2 कंपेयर होगा इंडेक्स से, 2 फिर नंबर्स ऑफ 1 1 कंपेयर होगा इंडेक्स से, फिर नंबर्स ऑफ 0 कंपेयर होगा 0 इंडेक्स। राइट? ऐसा होने वाला है ना? अब हमको यस मालूम, सर। हाँ हमको ये मालूम नहीं हो कब बाहर आ जाएगा। तो ये पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, या यहाँ पे भी आ सकता है, हमें मालूम नहीं। ठीक है, चलो कंपेयर करके देखते हैं हम लोग। ये नंबर ऑफ 3 क्या है? 19 19 19 ग्रेटर है क्या 10 से बोलो? यस सर। यस है ना? तो क्या करेंगे हम लोग, ये 19 को यहाँ लेकर आएंगे, ये 10 है ना, ये 19 होगी। इंसर्ट करने के लिए जगह तैयार कर रहे हैं हम लोग। ये इसीलिए स्टोर कर लिया दूसरी जगह पे ये 10, क्योंकि ओवरराइट होने वाला था। ठीक है ना? ये आ गया 19। कैसे आया देखो? नंबर्स ऑफ जे है 4 इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ जे -1 मतलब नंबर्स ऑफ 3। नंबर्स ऑफ 4 पे लिख दो नंबर्स ऑफ 3, नंबर्स ऑफ 4 ये है, नंबर्स ऑफ 3 ये है, नंबर ऑफ 4 पे लिख दो नंबर्स ऑफ 3, लिख दिया? करेक्ट? गॉट इट? यस सर। यस यस। अगर ये ट्रू हुआ तो नंबर जगह बनाने के लिए शिफ्ट हो जाएगा आगे, फिर से लूप पे आएगा। अब ये j इज इक्वल टू 3 देखो, n ऑफ 2 क्या है? 14 ग्रेटर देन इंडेक्स है क्या? ग्रेटर देन 10 है क्या? यस yes
तो 14 ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। 14 चले जाएगा 19 के ऊपर, ये 14 यहाँ पर आ गया। अब j इक्वल टू 2 का करो। n ऑफ 1 क्या है? 12 ग्रेटर देन 10 है क्या? यस यस ये 12 14 की जगह पे आ जाएगा। आगे जाएगा j इक्वल टू 1, n0 क्या है? 6 6 ग्रेटर देन इंडेक्स है क्या? नहीं नो नहीं है, ये नहीं है ग्रेटर देन। बाहेर है। तो अब ये फिर से ऊपर जाएगा, पर ये j का वैल्यू की वजह से वो बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे भी वो बाहर आने ही वाला था। अब नंबर ऑफ j कितना है बोलो? ये अंदर 1 गया नहीं, ये अंदर गया नहीं, तो ये हुआ नहीं, राइट। यस तो नंबर ऑफ 1 को इंडेक्स का वैल्यू है 10, नंबर ऑफ 1 हो जाएगा 10, नंबर ऑफ 1 ये है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 10, तो ये नंबर ऑफ 1 को आ गया इंडेक्स, तो ये 10 वैल्यू आ गई। तो यू सी 6 10 12 14 19, तो आउटपुट क्या होगा? 6 10 12 14 19, ये शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये आज 4 तक ही जाने वाला था, 1 से लेकर 4 तक ही जाने वाला था। अगली बार ये फॉर लूप में से बाहर आ जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ इंसर्शन सॉर्ट आल्सो। यस Yes, sir. असाइनमेंट में यहीं पर दे देता हूँ आपको। असाइनमेंट, show all passes for following numbers using bubble sort and insertion sort. पहला और दूसरा और ये तीसरा, 3 एग्जांपल्स है। बबल सॉर्ट के लिए तीनों सॉल्व करने हैं और इंसर्शन सॉर्ट के लिए भी तीनों सॉल्व करने हैं। एवरीबॉडी हैज टू डू दिस। तो नंबर रैंडमली लेता हूं मैं। तो पहला नंबर है 53 7 16 12 1 5 18। दूसरी लिस्ट है 33 22 11 9 1 0 92। और तीसरा है 6 4 9 1 0 2 3। तो sort this in ascending order for both bubble sort and insertion sort. Later on, solve this for bubble sort and insertion sort descending order. तो ascending order के bubble sort के 3 एग्जाम्पल, इंसर्शन सॉर्ट के 3 एग्जाम्पल, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट के 3 और इंसर्शन सॉर्ट के 3। तो ये 12 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। दिस इज योर होमवर्क असाइनमेंट। पेपर पे राइट करके इसको ग्रुप पे पोस्ट कर दो। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग ऑफ दिस। हॅलो सर, हाँ सर मला मध्येच कोणतं रिमूव्ह करून दिलं होतं लेक्चर मधून, ते मी 2दा। ओके ओके सर खरंच ती एक रिक्वेस्ट आहे की ऑर्गनायझर